Morning students, we will study about the process transcription. Yesterday we studied about the process of replication. What is the basic difference between the replication and transcription? In replication, both the strands of DNA gets duplicated, but in transcription, only single strand of DNA codes for the protein synthesis. For example, suppose this is one strand of DNA and this is the second strand of DNA. The strand of DNA which will copy the genetic information to RNA, this will be known as the template strand, template strand, and the another which will not code for the protein synthesis or will not copy the genetic information over the RNA is known as the coding strand. So what is the basic difference between transcription and replication? In transcription, only single strand of DNA codes, and in replication, both strands code. In the process of transcription also, there is complementarity, and in replication also there was complementarity. So what is the basic difference now? In replication, we studied that adenine base pairs with thymine, but in transcription, adenine will base pair with uracil. It will base pair with uracil. This is because in RNA, thymine is absent. Thymine is not present. In place of thymine, uracil is present in RNA. So adenine will base pair with uracil. Next, the difference was that only single strand of DNA duplicates or single strand of DNA copies the genetic information. Now the question is why not both the strands act as template? This is because if both the strands of DNA will act as template, they will code for different proteins. And if they will code for different proteins, there will be the formation of RNA which will be double stranded, and if the RNA is double stranded, it will not participate in the process of translation. So अगर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन नहीं होगा तो RNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. इसलिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर only single strand of DNA participates, not both, because if both the strands will participate, let's suppose this is one strand, this is second strand. If this strand will participate, this will base pair with RNA according to its complementarity. And now let us suppose if second strand also participates, it will base pair with the RNA of its complementarity. So now there will be formation of double stranded RNA. यहाँ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा. सो अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो आगे फर्दर ट्रांसलेशन प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, और ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. Here also it is written that if both the strands will participate, there will be no protein synthesis and transcription process would become futile one. Here this is written. Now let us study the transcription unit. अब देखिए, जो हम एक DNA का स्ट्रैंड लेंगे उसमें एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, लेट अस सपोज दिस इज वन DNA स्ट्रैंड विच इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड. तो उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर एक यूनिट होती है विच इज नॉन एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या चीज़ें होंगी? लेट अस सपोज दिस इज वन ऑफ द DNA स्ट्रैंड. Firstly will be the promoter P, which is written as P promoter. This region between the promoter and terminator is known as the structural gene. Firstly there is promoter, then terminator, and in between the promoter and terminator is the structural gene. तो हम जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन कर रहे हैं वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट लोकेटेड है एक डीएनए के एक सेगमेंट में. ये जो डीएनए का सेगमेंट जो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा उसके पास ही लोकेटेड है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ये 3 पार्ट्स हैं: प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर.
Now further we will be discussing about these three. See, there is one of the DNA strand, there is another DNA strand. So the strand of DNA which was coding for the synthesis is known as the template, and the second is known as the coding. Now this template strand has the polarity. What is the polarity of the template strand? The template strand polarity is 3' to 5', and the coding strand has polarity 5' to 3'. So how we define the coding region and template region? The coding region has polarity 5' to 3', and the template strand has polarity 3' to 5'. So the template strand will further participate in the process of transcription, and coding strand will not participate in the process of transcription. So here in the book this is written that coding strand is named as coding strand but does not code for any synthesis. किसी भी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करवाता, बेशक इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड है। अब जो एंजाइम हमने पहले पढ़ा था रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर जो एंजाइम होता है दैट इज नॉन एज डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए को एक टेम्पलेट बनाया तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. This is the enzyme which will participate in the process of transcription. DNA dependent RNA polymerase is the enzyme which will participate in the process of transcription. Okay, now we will further define what was the promoter and what was the terminator and what is the structural gene. So here is the coding strand. See, here was the coding strand. Coding strand was having the polarity of 5' to 3'. Okay, so promoter is defined as the region which is located on the 5' end of the coding strand. This is the coding strand. जितने भी ये 3 पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है, ये लोकेटेड रहते हैं कोडिंग रीजन के ऊपर, नॉट ऑन द टेम्पलेट रीजन. ओके, सो जितनी भी हम इनकी पोजीशन डिफाइन करेंगे वो हम कोडिंग रीजन्स के बेसिस पे डिफाइन करेंगे. तो प्रोमोटर इज लोकेटेड ऑन 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, टर्मिनेटर इज लोकेटेड ऑन 3' एंड ऑफ द coding strand, and the structural gene is flanked by the promoter and terminator. Flanked by means structural gene is present between the promoter and the terminator. This is the structural gene between the promoter and terminator. promoter और terminator के बीच में क्या रहता है? promoter है, terminator है, उसके बीच में रहता है structural gene. ओके, तो अब ये promoter जो है this will initiate the process of transcription and terminator region will end the process of transcription. Okay, now we have further discussed that coding region doesn't code for any synthesis, then also it is given the name of coding strand. अब देखिए हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लेट अस सपोज हमें एक स्ट्रैंड दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड. दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसके ऊपर फर्दर बेसिस के नेम्स दे रखे हैं, यानी एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, है ना. अगर हम देखें, हम जानते हैं पहला होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, देन इज कोडिंग स्ट्रैंड. तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसका जो बेस सीक्वेंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा आरएनए के. मतलब एक आरएनए ले रखा है, आरएनए के बिल्कुल सिमिलर होगा कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस. यानी यहाँ 5' से 3' था कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर, तो यहाँ आरएनए में भी पहले 5' से 3' होगा. कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर अगर यहाँ पहले ए था, यहाँ टी था, यहाँ जी था, लेट अस सपोज ATG, तो आरएनए के अंदर भी सिमिलर सीक्वेंस होंगे, बस थायमीन की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा? यूरेसिल. यानी कि इफ़ वी हैव बीन गिवन, अगर हमें ये दे रखा है कि दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द आरएनए,
कि आरएनए का ये सीक्वेंस है, तो हम उससे पहले कोडिंग सीक्वेंस का सीक्वेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आरएनए और कोडिंग सीक्वेंस, जो कोडिंग रीजन होता है उनका सीक्वेंस सेम होता है। फिर कोडिंग से फर्दर हम लोग टेम्पलेट रीजन का निकाल सकते हैं। तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ओके, फर्दर और एक और चीज़ क्या है, अभी हम लोगों ने जो पोजीशन डिस्क्राइब की, जो भी पोजीशन डिस्क्राइब की, प्रोमोटर की, टर्मिनेटर की, या जो स्ट्रक्चरल जीन था उनकी, उसकी हमने डिफाइन की ऑन द बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, इसको रिवर्स कर दें, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कैसे लिख लिया जाए, पहले अगर हम कोडिंग सीक्वेंस को ये दे दें कि 3 प्राइम से 5 प्राइम ये है और कोडिंग सीक्वेंस है, तो प्रोमोटर की पोजीशन अब यहाँ आ जाएगी, क्योंकि प्रोमोटर तो हमेशा 5 प्राइम एंड पर रहेगा ना, तो दिस विल बी प्रोमोटर एंड दिस विल बी द टर्मिनेटर। यानी कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग रीजन की सीक्वेंस पलटते के साथ प्रोमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाती है। ओके, this is given here also. This is promoter, this is terminator, between this is structural gene, coding strand, this is coding strand, okay, and coding strand has its 5 prime here and 3 prime here, 5 prime पे promoter है, 3 prime पे terminator है। फर्दर हम लोगों ने दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड प्रोमोटर टर्मिनेटर विच इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाय प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड की तरफ प्रोमोटर लोकेटेड है, हियर यू आर सीइंग। ओके, देन इट इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि डिफाइन करता है। फिर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस क्या है वो बताते हैं। देखिए, लेट अस सपोज दिस इज गिवन, दिस इज कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन का जो 5 प्राइम एंड है एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड। जो 5 प्राइम एंड है वो पहले है, दिस इज नॉन एज द अपस्ट्रीम पॉइंट। 3 प्राइम एंड बाद में है, दिस इज नॉन एज द डाउनस्ट्रीम पॉइंट। दैट्स वाई इट इज रिटन कि जो प्रोमोटर है इट इज लोकेटेड ऑन द 5 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम पोजीशन, ऐसा लिखा हुआ है। और जो टर्मिनेटर है इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम रीजन। तो ये हम लोग फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। ओके, एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट रहते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर। अभी आगे फर्दर आएगा कि जो ये स्ट्रक्चरल जीन था, ये बीच में स्ट्रक्चरल जीन था, यहाँ पर वेरियस रेगुलेटरी सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस RS प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ये जो रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, ये दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी RNA और प्रोटीन, ये RNA और प्रोटीन के लिए कोई कोड नहीं करते हैं, लेकिन दैट्स देन ऑल्सो दे हैव बीन गिवन द नेम ऑफ रेगुलेटरी सीक्वेंस इन द स्ट्रक्चरल gene. Now we are discussing the transcription unit and the gene. See, transcription unit and gene. Firstly, see that gene is defined as the functional unit of inheritance. Inheritance की जो functional unit है that is gene. हम लोग जो gene को define करते हैं उसमें थोड़ा clear cut mention करते हैं। देखिए, जो हम लोग DNA का एक स्ट्रैंड ले रहे हैं विच इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ये मान लो ये हमने एक DNA का स्ट्रैंड ले लिया, दिस इज़ द DNA स्ट्रैंड जो पार्टिसिपेट कर रहा था ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, हम लोगों ने उसको नेम दिया था टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक रीजन होता है जो हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि इस रीजन की जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्दर जानी चाहिए RNA के ऊपर। तो वो रीजन जिसकी फर्दर इंफॉर्मेशन RNA के ऊपर जानी चाहिए, दैट रीजन इज नॉन एज द सिस्ट्रॉन, विच इज नॉन एज सिस्ट्रॉन। हेयर इट इज गिवन ना, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन इज द रीजन इन द DNA, ये DNA के अंदर वो होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया है कि इसकी इंफॉर्मेशन फर्दर RNA के ऊपर पास होनी चाहिए। दिस रीजन इज नॉन एज द सिस्ट्रॉन रीजन। सो अब एक आप बेसिक थिंग नोट कर लीजिए कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो DNA होता है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब POC यानी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और जो यूकैरियोट्स होते हैं, जो भी न्यू हैं ऑर्गेनिजम्स, उनका जो होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं। वो मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी एक ही सिस्ट्रॉन के लिए कोड करते हैं। ओके, अब देखिए
एक जो हम बात ध्यान दें कि जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है उसमें एक डिफरेंस होता है कि यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है ना, उसके पास इंट्रॉन्स भी होते हैं, एक्सॉन्स भी होते हैं। अब जो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं उनमें से जो हमारे लिए फेवरेबल है दैट इज एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए। इंट्रॉन्स जो होते हैं दैट फर्दर क्रिएट द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर फर्दर बाधा ले आते हैं। दिस नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें जो चाहिए कि जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें से हम लोग किसको रिमूव कर दें? नहीं, यूकैरियोटिक जो आरएनए है वो प्रोसेस्ड आरएनए नहीं होता। यूकैरियोटिक का जो आरएनए है वो प्रोसेस्ड आरएनए नहीं होता, उसके अंदर एक्सॉन एज वेल एज इंट्रोन बोथ प्रेजेंट होते हैं। सो हमें जो चाहिए, जो हमारे लिए फेवरेबल है दैट इज ओनली द आरएनए विच विल बी हैविंग द एक्सॉन नॉट द इंट्रॉन। तो हम लोग लेट अस सपोज दिस इज द आरएनए। इस आरएनए यूकैरियोटिक आरएनए के पास एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। हमें चाहिए कि इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव हो जाने चाहिए। इंट्रॉन्स वो सीक्वेंस होते हैं जो फर्दर क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम। लेट अस सपोज दिस इज द इंट्रॉन। तो इस इंट्रॉन रीजन को हम लोग क्या कर देंगे? इस प्रोसेस्ड आरएनए से निकालेंगे ताकि जो हमारा जो प्रोसेस है वो इजी हो जाए। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे अनफेवरेबल होते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं वो फेवरेबल होते हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स चाहिए विच इज़ नॉन एज द स्प्लिट जीन कॉम्प्लेक्स, विच इज़ नॉन एज द स्प्लिट जीन कॉम्प्लेक्स। तो जो इंट्रॉन था वो मुश्किल क्रिएट कर रहा था, तो हम लोगों को इंट्रॉन्स को बाहर निकालना पड़ेगा, एक्सॉन को रखना पड़ेगा। तो इंट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो हमें चाहिए दैट इज़ द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट और स्प्लिट जीन कॉम्प्लेक्स। ओके, now next, inheritance of character is also affected by promoter regulatory sequence. Hence, sometimes the regulatory sequence are loosely defined as the regulatory genes, though they do not code for any RNA protein. ये मैंने आपको बता दिया है कि regulatory sequence structural gene के अंदर present होते हैं, but these do not code for any RNA और protein synthesis. इनका नाम बेशक regulatory gene है, but these do not code for synthesis of RNA और protein. अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। हम लोगों ने बोला था कि प्रोमोटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, टर्मिनेटर भी है। इनका एक अलग अलग फंक्शन है। जो प्रोमोटर होगा दैट विल इनिशिएट एंड टर्मिनेटर विल एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो इन बैक्टीरिया देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए विच इज mRNA, tRNA, rRNA. tRNA means transfer RNA, rRNA means ribosomal RNA and mRNA means messenger RNA. जो messenger RNA होगा it will provide the template. ये टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। mRNA क्या प्रोवाइड करेगा? टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उसमें। जो tRNA होगा वो इंफॉर्मेशन को ब्रिंग लेकर के आएगा, यानी एक मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। एक मैसेंजर की तरह काम करेगा, इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करता है। mRNA टेम्पलेट की तरह, ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर की तरह काम करेगा। जो tRNA होगा वो अमीनो एसिड्स को लेके आएगा और जेनेटिक कोड को रीड करेगा। एक्चुअली क्या होता है, mRNA तो टेम्पलेट की तरह एक्ट कर दिया, अब tRNA जो होगा उसको रीड करता जाएगा। जो जेनेटिक कोड यहाँ पे मेंशन होगा mRNA के ऊपर उसको रीड करता जाएगा और अमीनो एसिड्स को लेकर आता जाएगा। जब अमीनो एसिड्स को लाएगा तभी तो जेनेटिक कोड रीड हो पाएगा। एंड rRNA का फंक्शन क्या होगा? rRNA जो होगा वो कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन के दौरान, क्योंकि जो rRNA होता है ना बेटा उसके अंदर डिफरेंट होते हैं। जैसे जो rRNA है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, 15S RNA, 16S RNA, 18S rRNA, 5S rRNA। तो ये जो rRNA है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA ये कैटालिटिक रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक बात ध्यान रख लें कि हम लोगों ने एक एंजाइम पढ़ा था जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हेल्प करता है, दैट इज नॉन एज द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। जो इसमें RNA पॉलीमरेज होगा वो ही इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। सो सी हियर वी आर सेइंग हियर इज प्रोमोटर, 5 प्राइम एंड पे प्रोमोटर होगा। ओके, हियर इज टर्मिनेटर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का वो हो गया है? वैसे पता चलेगा
जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो हमने एंजाइम पढ़ा था, वो इनिशिएट करेगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। तो कैसे प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा? जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो जाएगा प्रमोटर यहाँ रीजन के ऊपर, बाइंड हो गया। अब इसमें दो फैक्टर्स काम करते हैं इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज खुद तो पार्टिसिपेट करेगा ही, साथ में सिग्मा फैक्टर, जो सिग्मा फैक्टर होता है वो भी हेल्प करेगा किसके अंदर? प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन के अंदर। यानी इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर दो चीज़ों ने हेल्प की, एक तो आरएनए पॉलीमरेज ने खुद ने हेल्प की है, और एक जो है इसके साथ साथ है सिग्मा फैक्टर। ये दिस इज नॉन एज अ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ने भी हेल्प की है प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन के अंदर। तो आरएनए पॉलीमरेज का पूरा पार्ट बाइंड नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही बाइंड होता है प्रोमोटर रीजन के साथ, और सिग्मा फैक्टर की हेल्प से इनिशिएशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज खुद जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर हेल्प करता है, वो और किसी प्रोसेस के अंदर एसोसिएट होता है तब हेल्प करता है। जैसे इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट हो रहा है, टर्मिनेशन रीजन के अंदर रो फैक्टर के साथ एसोसिएट हो रहा है। लेकिन इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर आरएनए पॉलीमरेज इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। यानी जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके पास खुद के पास सिर्फ एक ही एक्टिविटी है इंडिविजुअली, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। फर्दर इनिशिएशन प्रोसेस या टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए उसे एसोसिएट होना पड़ता है, या तो सिग्मा फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा या फिर रो फैक्टर के साथ एसोसिएट होगा। ओके हमें पता चल जाएगा कि हमें अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड हो रहा है, इट इज प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, एंड इफ इट इज बाइंडिंग विद द टर्मिनेटर रीजन, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन। सो यू आर सीइंग हियर द बेसिक डिफरेंस। इन द इनिशिएशन प्रोसेस इट इज बाइंडिंग, एंड in the termination process it is falling down. RNA polymerase is falling down. So here in the book also it is written that in the termination process it will fall off, RNA will fall off. Here you can see it is written that RNA will fall off and this will result in the process of termination of transcription. ओके ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि कैटालिटिक 3 स्टेप्स होते हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है कैपेबल होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन के अंदर, इंडिविजुअली तो सिर्फ इलोंगेशन के अंदर है, लेकिन एसोसिएट हो जाता है इनिशिएशन फैक्टर यानी रो, सिग्मा फैक्टर एंड टर्मिनेशन फैक्टर यानी रो टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके अब बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर हमें आरएनए की, जो आरएनए होता है एमआरएनए, जो बैक्टीरिया है उसके अंदर एमआरएनए एक्टिव होता है, याद रखें एमआरएनए इज एक्टिव। और हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप, बैक्टीरिया तो प्रिमिटिव है यानी प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोट के अंदर जो एमआरएनए होता है दैट इज द एक्टिव। बट इन यूकैरियोट अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो एमआरएनए होता है दैट इज नॉट एक्टिव, एमआरएनए इज नॉट एक्टिव एट ऑल, एमआरएनए इज नॉट एक्टिव, दिस is known as hnRNA, hnRNA which is not active. each hnRNA जो यूकैरियोट है इसको एक्टिव क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज देखिए जो hnRNA होता है ये किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है? जो hnRNA है उसके अंदर बच्चे हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक्सॉन एंड इंट्रॉन, इसमें से जो हमें चाहिए वो एक्सॉन है, इंट्रॉन को हमें बाहर निकालना है। तो hnRNA जो होता है यूकैरियोट्स में उसके पास एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। जब एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है तो हमारे लिए वो तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि उसके अंदर से हम लोग किसको रिमूव कर दें? इंट्रॉन को रिमूव कर दें। तो उसके अंदर जब हम लोग इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो फर्दर hnRNA जो यूकैरियोट का होगा वो कैसा हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, एंड बाद में उसको हम लोग क्या बोल देंगे? mRNA। तो यूकैरियोट्स के अंदर पहले जो RNA होता है दैट इज इनएक्टिव एंड दैट इज hnRNA, एंड फर्दर हम लोग स्प्लाइसिंग के बाद यानी जब इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे सिर्फ एक्सॉन्स रह जाएंगे, देन इट विल बी नॉन एज द एक्टिव। उसको बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस जो होता है वो एक ही जगह पे होता है। बिकॉज देखिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये मान लो साइटोप्लाज्म है एंड दिस इज राउंड वन इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, इनके बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो चाहे ट्रांसलेशन हो वो एक ही जगह पे कंपनी होते हैं, दैट इज द साइटोसोल, उसको बोलते हैं साइटोसोल। लेकिन अगर हम वहीं बात करें यूकैरियोट्स की
तो यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर होते हैं, बिकॉज यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंशिएशन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस वन एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म, डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है एक जगह पर नहीं होते, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर अकम्पनी होते हैं। ठीक है, अब हम फर्दर बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो सिर्फ एक ही आरएनए सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए। विच आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए? There are 3 different types of RNA. Firstly, if we will see, there is RNA polymerase first, then is RNA polymerase second, then is RNA polymerase third. So RNA polymerase first contains rRNA. जो RNA polymerase first होगा उसके अंदर rRNA होगा। rRNA के अंदर 28S rRNA, 18S rRNA, उसके बाद 5.8S rRNA, ये सारे rRNA जो हैं ये RNA पॉलीमरेज फर्स्ट में इंक्लूडेड होते हैं। देन जो सेकेंड RNA पॉलीमरेज है इट कंटेन्स द HNRNA। हम लोगों ने पढ़ा था यूकैरियोट्स के अंदर HNRNA होता है विच इज़ इनएक्टिव। उसको फर्दर स्प्लाइसिंग के बाद हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है दिस कंटेन्स HNRNA, and third one is RNA polymerase third which contains the tRNA. It contains the tRNA. Okay, so tRNA जो RNA होता है it is included in the RNA polymerase third. ओके, अब हम लोग जब प्रोसेस बात करते हैं वो इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाले, तो उसके प्रोसेस को एक बार डिस्क्राइब कर देती हूँ। सी है RNA पॉलीमरेज, एडिशनल पॉलीमरेज हम लोगों ने बता दी, ये मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सेस हैं RNA पॉलीमरेज फर्स्ट बता दिया, RNA पॉलीमरेज सेकंड बता दिया है। 28 18S 5.8 होगा। SNRNA को स्मॉल न्यूक्लियर RNA बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इस मतलब 5S RNA एंड SNRNA। RNA पॉलीमरेज थर्ड के अंदर tRNA होता है, 5S RNA होता है, SNRNA होता है, और जो RNA पॉलीमरेज सेकेंड होता है उसके अंदर HNRNA होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स के अंदर दैट इज़ कि हमें स्प्लाइसिंग की ज़रूरत होती है। अब स्प्लाइसिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, जिस लेट अस सपोज दिस इज द रीजन, इट कंटेन्स बोथ इंट्रॉन्स एज वेल एज एक्सॉन्स। तो जब हम लोग इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे यानी नॉन फंक्शनल पार्ट को रिमूव करेंगे दैट विल बी स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जब पहले रीजन को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद यहाँ पे होती है कैपिंग। क्या बोलते हैं उसे? कैपिंग। और जो लास्ट वाला रीजन होता है यहाँ पर होती है क्या? टेलिंग। क्या होती है? टेलिंग। तो कैपिंग रीजन के अंदर क्या आता है? कैपिंग के अंदर हम किस चीज़ की कैपिंग करते हैं? हियर इज द कैपिंग ऑफ मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग करते हैं। और टेलिंग किसकी करते हैं? एडेनिल रेजिड्यूज 200 से 300 रेजिड्यूज की। ठीक है, तो अब जो HNRNA होगा उसे mRNA बोल देंगे और वो फर्दर आउट हो जाएगा न्यूक्लियस से। हमने पढ़ा था यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग है। जो प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का वो न्यूक्लियस में होगा और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। तो जब ये mRNA बाहर निकल के आ जाएगा तो ये प्रोटीन का फर्दर सिंथेसिस करेगा, तो ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के आएगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाएगा। अब हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, स्प्लिट जीन्स का। बता दें आपको कि जो स्प्लिट जीन्स होते हैं, स्प्लिट जीन्स जो हैं, सच कॉम्प्लेक्सिटीज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली द एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। एंशिएंट फीचर है तभी तो रिमूव कर रहे हैं, अनफेवरेबल है रिमूव कर रहे हैं। और प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स जो है रेमिनिसेंस है एंटिक्विटी। रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी का मीनिंग क्या है? रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें पास्ट से मिली हो, पास्ट की किसी चीज़ के बारे में रिमेंबर करवाती हो, दैट इज़ रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी। तो जो स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग जो है वो बताती है हमें रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी के बारे में, और बताती है एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम के बारे में, और क्या बताती है कि डोमिनेंस है किसका? आरएनए वर्ल्ड का। आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस है, रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी है, एंड देन स्प्लिट जीन ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। तो 3 पार्ट्स उसने हम लोगों को बताए हैं। सो
हियर द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज अकम्पनीड बाय, किसके द्वारा कंपनी हुआ है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से। और ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि डीएनए की एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना आरएनए की स्ट्रैंड के ऊपर। ठीक है, थैंक्स।